The train that we are taking is called the Tejas Express. Such a fancy name as well. भाई देख लो, ये अपना डिनर है और मैं बता रहा हूँ अभी तक का खाया हुआ है, ये वन ऑफ द बेस्ट डिनर है। एकदम फर्स्ट एसी वाला खाना का फील आ रहा है ना, पूरा एकदम फर्स्ट वाला खाना का फील आ रहा है। How cool is this train? It almost looks like I'm climbing onto an aeroplane. Oh, have we got a double? That is pretty cool. इंडियन रेलवेज के बड़े बड़े स्टेशन की जो सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है, वेटिंग एरियाज में बेशक चार्ज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको जो है ना एक अच्छी स्पेस दे देते हैं। Oh, thank you. They've just provided us with breakfast. I did not know this was happening. We have some cornflakes It's crazy. and a veg vanilla cake. That's yummy. टायर्स 3 टायर्स, सॉरी। अच्छा जी, वो भी अगर देखो तो उस लिहाज से भी बिल्कुल वो क्लीन था, और जो खाना भी उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा टेस्ट में। Dhanyavad. Oh, mango fruit drink. I think I'll save mine for later. वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। Good omelette. Oh, yes please. Thank you. No, thank you. They're definitely feeding us so much on this train. We're going to be rolling off of this train. लेकिन तुम ये देखो कि कितना साफ सुथरा था कि आपको नीचे कारपेट बिछा हुआ है, लाइट अच्छी दी गई है, सो आपका खुद ब खुद अच्छा सफर करने का दिल करता है। जिस तरीके से आपको जो ब्रेकफास्ट है वो भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सर्व किया जाता है। उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है, ठीक है, इंडिया वालों ने। ठीक है, वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। तो उसके अंदर है कि अगर आपको किसी को बुलाना है, कोई आपको सर्विस की जरूरत है, तो आप बेल प्रेस करो, प्रेस करें, और उसके बाद भाई आपको सर्विस मिल जाएगी। और What's name of this? सीधा Sida. Pudding? Sweets? स्वीट सीधा। Sweet Sida. Okay, thank you. क्योंकि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री देखी गई ना, वो टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसके मतलब टीपू सुल्तान वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 साल बेहतर है। देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है, लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जहाद का दर्ज दिया है, हमारे में ईमान, उनमें ईमान नहीं है ना। Cool. We got lunch. And I have a date, seeing that we're sitting across each other. I just decided to move this side because the people had gone and my neck was getting quite stiff looking to one side, so now I can see Danny without my neck hurting. And it feels like I'm in a restaurant, right? It does, hey? We've got a whole bunch of things here. 1, 2, 3, 4, 5 with some skimmed milk. Oh, it just went dark. We're in a tunnel. Okay, let's see what we have for lunch. Do we have bread again? Probably. What's this? It's probably like a paneer or something. Oh, yeah. It is like a naan bread, not a naan bread, more like a chapati. We have rice. That's a lot of rice. And in here, we got some aloo. I guess that's either a pudding or a dal. Is it a sweet one? I don't know, I'll have to taste it. It doesn't smell sweet. Oh, I think it's like butternut or gem squash or something like that. I think. Oh, we saw there, it was quite flabby. Sorry. Oh, yummy. That's a dal. There's a curry in here. I don't want to lift it up, otherwise I'm going to mess it everywhere, but that looks good. And the last dish over I think here. it's going to be a butter. Oh, is that a chicken curry? That's a chicken curry. Oh my gosh. It smells delicious. Pudding this is. If you can see it, and you know what it is, let us know in the comments below what pudding that is. I must say, I'm really happy to have these seats now. If we're sitting on one of those chairs, we'd be sitting next to each other, but now we can actually sit and talk like this. And there's so much space. Yeah. So if you want seats like this and you do find a different website through which you can actually book these tickets, book 25 and 26. Or even 29 and 25. Then you'll have
You and your friend, partner, wife, girlfriend, flues, whatever you want, will be right opposite you. It was very good. Thank you. Very good. What name of this? Cedar. Pudding? Sweets? Sweet cedar. Okay. Thank you. Now we know the name of the pudding. It's a cedar pudding. Yeah. And it was really good. Google, what's a cedar pudding? What's a cedar pudding? We've tried to Google it, but still can't seem to find it on the internet. So I don't know if I'm spelling it wrong, but if you know what a cedar pudding is made of, let us know in the comments. लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है जिसने जो जाना है जाके करे, आप क्या करेंगे? मतलब क्या कर सकते हैं आप? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं, वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों के लिए। मुझे ये बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ये तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम दो को साथ लेके मरेंगे उनके। हमारे जो असला है वो कहाँ से आ रहा है ज्यादातर? वो बिल्कुल अमेरिका से आ रहा है, लेकिन वो मुनाफिक लोग हैं ना, वो तो हमें ना फायदा उठाते हैं ना। हमें भी तो चाइना फिर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, चाइना हमारा दोस्त है ना। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है ना वो अपना मफाद उठाता है। चाइना अगर हमें सपोर्ट कर रहा है ना, वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, वो किसी और मुल्क को, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है ना, उनको कम सपोर्ट करता होगा, लेकिन कम करता है। आपके ख्याल से ये जंग शंग, ये जो इस टाइम कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है, देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इस टाइम अगर हम बात करें सिचुएशन की, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन उधर होती नजर आ रही है। वहाँ से उनकी जो आर्मी के जवान हैं उधर, तो उन्होंने प्रॉपर अनाउंस करके विद यूनिफॉर्म वहाँ पे मौजूद हैं, जम्मू के अपने साइड पे। लेकिन यहाँ से खबर ये है इस साइड के, मतलब इंडिया मीडिया के मुताबिक, कि भाई यहाँ से जो सिविल में नौजवान हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो वहाँ मौजूद हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है, कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है। अच्छा, वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर वाले। हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन उनका अभी एक मैसेज मैं साथ क्लिप चलाऊंगा, जो इंडिया साइड कश्मीरियों का मैसेज था पाकिस्तान के लिए। वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप पहले अपनी सूरत हाल तो ठीक कर लो, फिर आप हमारे लिए भी लड़ लेना या हमारी बात करना। आप अपनी इधर रोटी बेरोजगारी इससे गुर्बत से लड़ रहे हो। वो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन भाई मेरी बात सुने, जो जहाद है ना, जो जहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी है। ठीक है, आपको क्या लगता है 5वीं जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? ये हो जाए। अच्छा, इधर मजीद जो लोग, आपसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो मजीद लोग हैं उनसे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर साथ आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे? इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं, सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? दोस्तों, तेजस एक्सप्रेस ट्रेन अपनी गुड लुकिंग और साफ सफाई के लिए जानी जाती है और थोड़े ही समय में यह ट्रेन भारतीय यात्रियों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है। दोस्तों, तेजस ट्रेन में वो सुविधा मिलती है जो अमेरिका और यूरोप के देशों की ट्रेनों में मिलती है। चाहे आप इसकी स्पीड की बात करें, उसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें या फिर उसकी परफेक्ट टाइमिंग की, ये तेजस एक्सप्रेस ट्रेन इन सब मामले में यूरोप की ट्रेनों को पीछे छोड़ रही है। और दोस्तों, एक और ऐसी बात है जो तेजस को सबसे आगे लाकर रख देती है, और वो है इसमें परोसे जाने वाला खाना। दोस्तों, इसमें दिया जाने वाला खाना स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि विदेशी नागरिक भी तेजस ट्रेन में मिल रहे खाने की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन के अंदर किचन नहीं होता बल्कि रेलवे स्टेशन पर ही खाना बनाने का इंतजाम किया जाता है, और जब ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती है तब गर्मा गर्म खाना पैक करके ट्रेन के अंदर ले लिया जाता है।
इससे होता यह है कि पैसेंजर को हर वक्त गर्मा गर्म खाना मिलता रहता है और वो भी कम दामों में, क्योंकि तेजस ट्रेन के अंदर खाना बनाने का डिब्बा ही नहीं होता। ये पूरा का पूरा खाना बाहर स्टेशन के रेस्टोरेंट पर ही बनता है। इसलिए इसमें रेलवे को भी फायदा होता है और मुसाफरी करने वाले पैसेंजर को भी फायदा होता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में खाना खाया है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।